Namaskar, I am Sambhu sir again. Welcome all of you my YouTube चैनल शंभू सर इंग्लिश क्लासेज। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत शानदार वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें डिफरेंसेज ऑफ एडजेक्टिव्स बताऊँगा। एक दूसरे एडजेक्टिव में किस तरह से डिफरेंसेज है उसे मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो आज मैं इस वीडियो को लेकर के आ ही गया हूँ, तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं बोल दूँगा कि चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं वीडियो को। जैसा कि मैंने पहले ही ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया हूँ टाइटल के रूप में, डिफरेंसेज बिटवीन एडजेक्टिव्स, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, former, later, older, elder, each, every, either, neither, each other, one another, later and later, father and father. All these adjectives have been already clarified on the board. So one by one we shall study. Okay, some and any. Okay, some here, some used in affirmative sentence, mainly to show quantity. Okay, some used in affirmative sentence, okay, to show quantity. Example, I need some milk. I need some milk. I need some milk. I need some milk. Okay. I have some pencils. Means to show quantity, and quantity and mainly in affirmative sentence we can use some. While for any used in interrogative sentence or and any used in interrogative sentence and in negative sense too. Okay. For example, do you have any religious book? Interrogative sentence. I have not any religious book. In negative sense. So you might have understood what is different between some and any. Some used in affirmative sentence to show quantity. Any used negative sense in interrogative sentence. Okay. Next here, like this, okay,
few and little. Few denotes okay, few denotes number, while little denotes quantity. Okay, few denotes number while little denotes quantity. For example, I have few pens. Okay, I have few pens. While for little, I have, or there is little tea in the cup. Little tea. There is a little tea in the cup. However, both few and little in themselves, few and little both in themselves denotes negative sense, नहीं के बराबर. Okay. However, few and little also categorized है. A few, a few, and the few. Totally negative. This one is something, but this one is satisfactory. Totally negative. Few, something more, but this one means satisfactory. Okay, so like this, few, a few, and the few denotes something more. However, also in negative sense, okay, but something more in comparison to totally negative. The same say little, a little, and the little. The difference here, few denotes for number in negative or positive sense, and the little or little denotes quantity. So you might have understood, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में हम लोग डिफरेंस करते हैं. सेटिस्फैक्ट्री है, द लिटिल मीन्स ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, संतोषजनक. लिटिल, ए लिटिल in comparison to little something more. Little is totally negative. Few is also totally negative. So you might have understood what is difference between few and little. A few, the few also related to. Like this, what I have clarified. Okay. Next year, former and latter. Former and latter. Okay. Former and latter. Former denotes first
और बिफोर, फर्स्ट और बिफोर, latter, however, latter, latter denotes second in order, example, Mohan and Sohan are friends. Mohan and Sohan are friends. Former is intelligent, and gracious. While the latter, Sohan is dull and nothing. So you might have understood, जो पहले वाले मोहन जो है इंटेलिजेंट है और ग्रेसियस है, जबकि दूसरे वाले द लाइटर, दूसरे वाले सेकंड सोहन वो डल भी है और नटखट भी है ना. सो यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड लेफ्ट. ओल्डर एंड इल्डर, हालांकि दोनों का मतलब बड़ा होता है, बड़ा. ओके, अपने सगे भाइयों में, अपने सगे के लिए किन रिलेटिव. ओके, ओल्डर इज यूज्ड फॉर अदर्स, to show, okay, bigger in age, while elder used for bigger age, mainly for own and kin relatives. अपने सगे संबंधियों में बड़ा बतलाने के लिए इल्डर का इस्तेमाल करते हैं. सगे संबंधी, सीमा माई सिस्टर इज इल्डर टू मी. सीमा माई सिस्टर इज इल्डर टू मी. सीमा जो मेरी अपनी बहन है वो हमसे बड़ी है. मोहन माई फ्रेंड्स ब्रदर इज older to सीमा. कहता मोहन माई फ्रेंड्स ब्रदर older to सीमा, है ना. मेरा दोस्त का भाई जो मोहन है, मेरी बहन सीमा से बड़ी है. मीन्स किन रिलेटिव नहीं है, सगे संबंधी नहीं है. तो सगे संबंधी में बड़ा बतलाने के लिए हम लोग इल्डर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि
सामाजिक भाई बहन दूसरे के लिए ओल्डर का इस्तेमाल करती है। इल्डर ओल्डर एक और बात है, इल्डर और ओल्डर बाकी और सारी बात है, सीनियर जूनियर ये सब कंपेरिजन के सेंस में हमेशा टू लेता है इन, ओके, इन प्लेस ऑफ दैट, सो यू माइट हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे each and every ईच का इस्तेमाल दो के अर्थ में किया जाता है, दो के अर्थ में ईच का इस्तेमाल करते हैं, जो दो से अधिक के अर्थ में एवरी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, दोनों लड़के, दोनों, एवरी बॉय, दो से अधिक लड़के, दो से अधिक लड़के, सभी तेज। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ दो के लिए आता है, एवरी दो से अधिक के लिए आता है। आइदर, नाइदर, आइदर का इस्तेमाल दो के लिए होता है या दो में से एक के लिए, दोनों इसका मीनिंग होता है, दो में से एक के लिए और दोनों के लिए होता है। पॉजिटिव सेंस में आइदर का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में, नाइदर का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में होता है। आइदर, हालांकि दोनों दो के अर्थ में होता है, दोनों दो के लिए आता है। जैसे आइदर साइड ऑफ, आइदर साइड, रोड इज बिजी, ओके, माने एक तरफ बिजी है, एक तरफ व्यस्त है, या दोनों तरफ, दोनों, नाइदर साइड, मतलब दोनों तरफ नहीं, नाइदर साइड ऑफ द रोड, यानी सड़क के व्यस्त नहीं है। तो आप समझ गए हो कि आइदर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, नाइदर का इस्तेमाल दोनों दो के अर्थ में करते हैं, दो के लिए। निगेटिव में नाइदर, अफर्मेटिव में आइदर। ईच अदर, आगे हम लोग देखेंगे ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो के लिए होता है, दो से अधिक के लिए वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं। दो के लिए ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं, दो से अधिक के लिए वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, ओके, जैसे मोहन एंड सोहन, मोहन एंड हेल्प ईच अदर इन द एग्जाम, इन एग्जाम। मोहन और सोहन दोनों एक दूसरे को मदद की। मोहन
Sohan and other classmates help one another. मोहन, सोहन एंड अदर क्लासमेट्स, सभी जो है एक दूसरे को दो से अधिक के लिए, वन अनदर दो से अधिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो के लिए ईच अदर, जैसे मोहन और सोहन एक दूसरे को मदद किया, लेकिन मोहन, सोहन एंड अदर क्लासमेट्स ढेर सारे और दूसरे एक से अधिक के लिए। तो आप समझ गए हो कि ईच अदर और वन अनदर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं लेटर एंड लेटर। आगे बताने से पहले फिर मैं आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि एक बार वीडियो जरूर लाइक सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो उसे जरूर कर देंगे। और आगे देखते हैं लेटर एंड लेटर। लेटर समय बताता है, लेटर समय बतलाता है, लेटर क्रम बतलाता है, क्रम। हालांकि एक कंपैरेटिव फॉर्म है, दिस वन इज कंपैरेटिव फॉर्म। ओके, ही केम लेटर, ही केम लेटर, देर से आया, ही केम लेटर। He came later to me. He came later. He came later to me. Okay. He came later to me. He bought it. He bought 2 pens. He bought 2 pens for marriage. For marriage. Waited while later is not working properly. Later, while later, former पहले वाले कहने का 2 पेन्स मैंने खरीदा। ओके, 2 पेन्स मैंने खरीदा। फॉर्मर फर्स्ट जो खरीदा इज वेटेड। ओके, टू पेन्स खरीदा है ना, पहला जो खरीदा वो वेटेड, वाइल द लेटर बाद वाले जो है नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, बाद वाले जो खरीदा वो नहीं है ना। तो किस तरह से लेटर और लेटर, लेटर समय बतलाता है जबकि लेटर क्रम को बतलाता है कि दूसरी बार। लास्ट है फादर, ओके, एंड फर्दर। फर्दर इट डिनोट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस। फर्दर नेक्स्ट बतलाता है।
नेक्स्ट, अगला क्या था? ही लिव्स, he lives farther to me, he lives farther to me, हमसे दूर रहता है, he lives farther to me, okay, okay, tell me further task, आगे के काम बताओ, tell me the further task, अगला काम, नेक्स्ट काम बताओ, further। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इन सभी एडजेक्टिव्स में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जिसमें सेंटेंस बनाते समय इस्तेमाल करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, खास करके ऐसे एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस जानना एडजेक्टिव में बहुत ही जरूरी है। तो आप इस वीडियो को समझ गए होंगे कि हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है एक पंथ दो काज अपने कोर्स के कंप्लीट करने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो अब इसमें हर व्यक्ति, हर लोग, हर स्टूडेंट चाहते हैं कि कम समय में बेटर रिजल्ट मिले, कंपटीशन पास करें। तो वैसे बच्चे के लिए वीडियो में बने रहें शुरुआती से, जैसा कि मैंने एडजेक्टिव से ही मैंने शुरू किया और एडजेक्टिव से लेकर के एडजेक्टिव में क्या डिफरेंसेज है, कहाँ यूज है, सारा चीज़ बताने का प्रयास किया हूँ। तो अच्छी तरह से लाभान्वित होने के लिए वीडियो में बने रहिए। और फिर इस वीडियो में ही मैं वादा करता हूँ कि अभी और कुछ छूटा हुआ है, जिसे किसी दूसरे वर्ड से, वर्ड फॉर्मेशन में कैसे हम दूसरे वर्ड से एडजेक्टिव बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम दूसरे शब्दों से भी एडजेक्टिव बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्म करेंगे। तो इस तरह के वीडियो लेकर के मैं ज़रूर आऊँगा। तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।